afternoon everyone. Today we will study gastrointestinal agents. So as the name indicates, gastro means they will act on stomach as well as intestine, right? So when they will be acting on stomach and intestine, that means these agents will be helpful in treating all these four kinds of problems which happen in your stomach and intestine. So first problem is achlorhydria or hypochlorhydria. A means absence of chlorine, HCl. So when there is a little amount of insufficient amount of HCl in your stomach, it is called as achlorhydria, or hypo means less, when there is less secretion of HCl in your stomach. Now the second type of problem which GIT agents will treat is hyperacidity. Sometimes you eat so much spicy food and oily food that there is acidity in your stomach. So to treat the hyperacidity, we will use antacids to treat that. Third kind of problem in your stomach happens when you eat the food which is either mixed with bacteria or it has you have taken the excess amount of anything. Okay? So that leads to diarrhea. That means repeated loose motions, right? And the fourth kind of problem which GIT agents will treat is constipation, right? When the stool formation is very less, and that is also a problematic case. So in all these four conditions, achlorhydria, hyperacidity, diarrhea and constipation, all these problems are related to stomach and intestine. So the agents which will treat all these problems are called as gastrointestinal agents. That means they will treat the problems of stomach and intestine. So we will discuss each and every agent one by one. First is gastric acidifiers. Gastric means stomach, acidifiers. That means they will increase the amount of HCl in the stomach. So before that, you should know why HCl is necessary in your stomach. So HCl का क्या काम है? एक तो ये आपके स्टमक में जितने भी बैक्टीरिया, आप गंदा जो खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, वहां से बैक्टीरिया आपके स्टमक में आ गया, तो उसको किल करने के लिए वी यूज द HCl. HCl is naturally it is killing all the bacteria, right? Second thing is it is secreting pepsin from pepsinogen, right? So pepsin का आपको अच्छे से पता है क्या काम है ना? It is a very useful enzyme in your stomach. ठीक? तो तीसरा काम HCl का क्या है कि जो भी आप खाना खाते हो वो थोड़ी हार्ड कंसिस्टेंसी में होता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए HCl जो है यूज किया जाता है स्टमक में. ठीक है? तो ये तीन फंक्शन है HCl के, मतलब HCl भी आपके स्टमक में बहुत यूजफुल रोल प्ले करता है. ठीक? तो लेकिन जिन लोगों को achlorhydria या hypochlorhydria है, दैट मीन्स उनके स्टमक में कम HCl सिक्रीट हो रहा है. ठीक है? तो आपको पता कैसे चलेगा? बिकॉज उनका मेजर साइन एंड सिम्टम क्या होता है? दे पीपल सफर फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया, राइट? जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है. ठीक? तो इसलिए HCl आपके स्टमक में बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन. ठीक है? और पेप्सिन भी जो है एसिडिक pH पे ही सिक्रीट होगा, एल्कलाइन pH पे सिक्रीट नहीं होगा.
हमारे पास एक ऑफिशियल गैस्ट्रिक एसिडिफायर है, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट क्यों? हम डाइल्यूट करके इसको पेशेंट को दे रहे हैं। कैसे? 5 ml डाइल्यूट HCl with 200 ml ऑफ वाटर। ठीक है, इस वे में जब हम पेशेंट को देंगे तो उसको ना एक क्लोरहाइड्रिया रहेगा ना ही हाइपोक्लोरहाइड्रिया रहेगा। ठीक है, और उसके स्टमक में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी किल हो जाएंगे। क्लियर? सो फर्स्ट वाज गैस्ट्रिक एसिडिफायर, ठीक, which will secrete the more amount of HCl in your stomach when there is some deficiency, ठीक, or when there is insufficient secretion of HCl in your stomach, then we will give gastric acidifiers. They will acidify the stomach with HCl. Clear? Second type of agents are antacids. एंटासिड्स एसिडिटी के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। कि आपने बहुत स्पाइसी खाना खा लिया, ऑयली फूड खा लिया, कोई चीज़ ऐसा खाने से आपको एसिडिटी हो गई। इवन बासा खाना खाने से भी एसिडिटी हो जाती है ना? जब आप 1-2 दिन के चावल, दाल, सब्जियां, पुरानी कोई चीज़ें खाते हो तो भी आपके स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको? हम एंटासिड दे देते हैं। ठीक है, एंटासिड का क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? क्या करेंगे ये जो हमारे स्टमक में HCl बन रहा है या कोई भी एसिड बन रहा है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स दे विल रेज द pH ऑफ स्टमक अबव 4, है ना? 4 से ज्यादा जब pH बढ़ा देंगे तो वो एल्कलाइन साइड पे चला गया तो एसिडिटी कम हो गई। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और वो एसिडिटी को कम कर देंगे, ठीक, बाय रेजिंग द pH, एंड दे आर एक्चुअली दे विल न्यूट्रलाइज द एसिड, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। आपका आइडियल एंटासिड होना कैसा चाहिए? पैलेटेबल होना चाहिए। पैलेटेबल मीन्स टेस्ट में अच्छा हो, मीठा हो, कड़वा ना हो। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट ना करे, क्योंकि अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करने लग गया फिर एसिडिटी कहाँ पे रिलीव हुई। ठीक है, ना वो कॉन्स्टिपेशन करे ना ही डायरिया करे। ठीक है, और पेप्सिन की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करे। ठीक है, क्योंकि पेप्सिन ही तो HCl बनाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब है एनीथिंग विच रीचेज योर ब्लड सर्कुलेशन, राइट? तो ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली कौन सी चीज जाएगी? जो इजीली एब्जॉर्ब हो रही है ना? जो पोरली एब्जॉर्ब होंगे वो तो ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्टली जाएंगे ही नहीं। सो दे आर नॉन सिस्टेमिक बिकॉज दे आर नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द ब्लड, and systemic which reaches into the blood circulation directly because they are easily absorbed and easily soluble, right? So in systemic antacid we have one very common compound which you have heard by the name of mitha soda or baking soda, that is sodium bicarbonate, right? This is your systemic antacid which is used to treat the systemic acidosis. Now what is acidosis? जिसमें एसिड की कंटेंट ज्यादा हो जाएगी, है ना? तो उसको ट्रीट करने के लिए एसिड को हमने कम करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? कोई बेस यूज करेंगे which is your sodium bicarbonate. ठीक है, सेकेंड इज इट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। सोडियम आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस भी है, तो हमारे मेन 2 इलेक्ट्रोलाइट्स तो है ही है। तो बॉडी में जब इनकी कभी कमी होगी तो उसकी भी पूरा करेगा, कमी पूरा करेगा। रिप्लेनिशर मींस किसी चीज की कमी पूरा करेगा, ठीक? सो इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में कमी को पूरा करेगा। थर्ड इज यूज्ड एज ईयर ड्रॉप्स।
कान में मैल निकालने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स का, ठीक। एंड आई लोशन ऑल्सो, आईज की वॉशिंग के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स एंड आई ड्रॉप्स यूज करी जाती है। तो ये तो थे 4-5 इसके यूजेस, लेकिन इसका सबसे मेन साइड इफेक्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का, दैट इट कॉजेस एल्किलोसिस। व्हाट इज एल्किलोसिस? दैट मीन्स if it is given regularly, then it will increase the amount of alkali in your body. So this is the major side effect of sodium bicarbonate. Otherwise it has so many useful otherwise it has so many uses. Only major side effect is alkalosis, and this is the very commonly asked question. What is the side effect of sodium bicarbonate antacid? So what you will write as alkalosis. It increases the amount of alkali if it is given for a longer time in the body. Clear? Now all these antacids are of non-systemic type, right? Only one is systemic, that is sodium bicarbonate. Now coming to the non-systemic, that is first is aluminium hydroxide gel. So what is the main use of this is astringent. In the last chapter astringents we have already studied. They precipitate the proteins, they cause the constriction of blood vessels, and then they give their astringent effect. And second is desiccant, that means it absorbs all the moisture from the atmosphere where it is kept. Third use is in the treatment of diarrhea and cholera. Diarrhea, no, loose motions. Cholera is हैजा, जब बहुत excessive amount में लूज मोशंस और राइस वाटरी स्टूल्स, बहुत उसमें तो पेशेंट की अगर इफ इट इज नॉट ट्रीटेड टाइमली उस टाइम फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो दिस कॉलेरा हैज टू बी ट्रीटेड वेरी इमीडिएटली, राइट। डायरिया तो चलो 2-3 दिन तक इट टेक्स टाइम, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस योर प्रेसिपिटेटेड chalk. This is the common name of calcium carbonate. And what are the uses? It is used as antacid, right? To relieve the heartburn. जब आपको एसिडिटी से फील होती है तो आपका यही होता है ना, सीने में जलन सी हो रही है, यहाँ जलन हो रही है, तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का एंटासिड। एज वेल एज इट इज यूज फॉर अपसेट स्टमक, वही डायरिया और उसको लूज मोशंस को ट्रीट करने के लिए, indigestion already discussed, and in low blood calcium levels because it has the calcium as the main ingredient. So अगर किसी में कैल्शियम की कमी भी होगी उसको भी ये पूरा कर देगा, ठीक। नेक्स्ट antacid is megaldrate. Now what happens is, many times we have seen that antacids are given in combination, aluminium and magnesium के combination में. Why? Because magnesium salts are they cause constipation, and aluminium and calcium salts they cause diarrhea. So अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देंगे तो ना पेशेंट को डायरिया होगा ना ही कॉन्स्टिपेशन होगी. सो इसलिए हमने एक कॉम्बिनेशन यूज किया, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के सॉल्ट्स दे आर लैक्टेटिव इन नेचर और एल्यूमिनियम और कैल्शियम के कॉन्स्टिपेशन करते हैं. ये उनका साइड इफेक्ट होता है. कैल्शियम और एल्यूमिनियम का साइड इफेक्ट क्या है? दे कॉज कॉन्स्टिपेशन. जबकि मैग्नीशियम सॉल्ट्स का क्या साइड इफेक्ट क्या है? दे कॉज डायरिया. तो एक डायरिया कर रहा है, एक कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, तो हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट यूज करेंगे कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जिससे पेशेंट को ना डायरिया हो ना ही कॉन्स्टिपेशन हो. सो हमने क्या दिया? मेगाल्ट्रेट, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम.
जिससे कि ना डायरिया होगा ना ही कॉन्स्टिपेशन। सो इट इज यूज्ड एज एंटासिड हार्टबर्न एंड इन गैस्ट्रिक अल्सर्स। बहुत ज्यादा एसिडिटी अगर हो जाती है तो आपको अल्सर भी होने लग जाते हैं। इफ द एसिडिटी इज नॉट ट्रीटेड टाइमली एंड प्रॉपर्ली देन इट लीड्स टू अल्सर्स। तो उसको भी ठीक करने के लिए मेगालमेट इज यूज्ड एंड एसिड इंडाइजेशन। Last is your magnesium hydroxide. So it has laxative action. I have already told you that the salts of magnesium, they cause laxative action. Heartburn. So heartburn को ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा? By lowering the amount of acids in the body. So and it will treat the constipation because it is causing, it has a laxative effect. And last is to treat the upset stomach. कोई लूज मोशंस को ठीक करने के लिए हम कुछ ऐसा देंगे जो भी ना लूज मोशन करे ना कॉन्स्टिपेशन करे. इट शुड बी आइडियल एंटासिड, राइट? So these are the official antacids which are in your syllabus. So we have studied 2 chapters in this GIT agents, gastric acidifiers and antacids. So in the next chapter, next topic, we will study protectives and adsorbents and cathartics. They both are the part of GIT agents that we will study in the next class. Thank you so much.